Welcome once again in the physics classes. Today our topic is electric field. But the electric field due to a line charge. The electric field is due to line charge. But we have already done the electric field due to a uniformly charged ring. By applying, यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो यूज कर लेंगे by applying Coulomb's law. By applying Coulomb's law, but by using the Coulomb's law. How we can find the electric field at any point due to a line charge? Consider a line charge. Consider a line charge uniformly distributed a charge like, okay, this is the uniformly line charge, and consider a line charge infinitely long, having linear charge density lambda, having a linear charge density is lambda. Okay, now this line is infinitely long, suppose that. But question is to find the electric field at any point. Suppose that we have a point at a distance of r from, सपोज हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसका सेंटर मान के चलते हैं और ये जो पॉइंट P जो है उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लाइन कंसीडर करेंगे, और ऑलमोस्ट हम इसको सेंटर से कंसीडर करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x मान लेते हैं, along x axis at a distance of x the point P is there. Now and suppose that, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, या मान लेते हैं जो लाइन जो चार्ज है हमारे पास, दिस इज इनफाइनाइट टू इन्फिनिटी प्लस माइनस टू इन्फिनिटी प्लस, इसकी लेंथ है. अब कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ए बी ऑफ लेंथ dl. इसका लेंथ में कितना कंसीडर कर लेता हूं उसको dl, और एट ए पॉइंट ऑफ at a distance of L from the center of this line. हम कंसिडर करके चल रहे हैं इसको सारा केसेस को, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी, क्योंकि इनफाइनिटली लॉन्ग ये लाइन है, लाइन चार्ज है. नाउ सपोज दैट ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑफ लेंथ dl at a distance L from the center of the line charge, of the center of the line charge. Okay, let, हम यहां पे मान के चलते हैं इसको, let P with a point at a distance
at a distance of x from the center of the line charge, from the center of the line charge where the electric field is to be determined. Where the electric field is to be determined. अब सपोज दैट, अब हम इसको लाइन चार्ज से आसानी से नहीं कर पाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट first we have to calculate the electric field at point P. What is the magnitude of the electric field at point P due to this small element? But charge लेते हैं, इसका linear charge density हमने कितना consider कर लिया, इसका lambda of this linear charge density. Suppose that if dq is the charge on the small length a small element, then what is the value of dq? The dq is equal to lambda dl. Why it is lambda? Because the linear charge density lambda is equal to q upon l. So q is equal to lambda multiplied by l. Therefore लाइन ज्वाइन कर लो इसका, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लगभग इसका सेंटर कंसिडर कर लेते हैं उसको, ए बी की जगह में इसका सेंटर जो है ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और इसका पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं, एंड लेट दिस डिस्टेंस एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा, और लेट दिस डिस्टेंस इज आर. अप्लाइंग कूलम्स लॉ. According to Coulomb's law, the electric field at point P due to the small element, what is the electric field? अब देखो ना, इसमें यहाँ पे स्मॉल चार्ज dq है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, तो डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का along this point, along this direction. Am I right? Now इसको हम कंसिडर कर लेते हैं dE. According to Coulomb's law, what is the value? The Coulomb's law, according, what is the value of the electric field? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the formula for the electric field according to Coulomb's law. But हमने इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालना है, स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, DE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square. What is r? क्योंकि हम इसको परपेंडिकुलर मान के चले हुए, लगभग इसका परपेंडिकुलर है, तो r की वैल्यू जो हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लगभग l डिस्टेंस मान के चलेंगे इसको, l अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस लॉ, and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. What is the value of dq? Lambda dl upon, and what is the value of l square plus x square? Square and under root in this will be cancelled, or which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl upon l square plus x square along, directed along CP. Now again, here we have this electric field, ये this is the axis, मान के चलते हैं इसको, here see again, the electric field DE can be resolved into two component. एक इसका axial component आ जाएगा, what is the axial component? D cos theta, और इसका दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास या परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज DE sin theta.
and this. But by the symmetry of the line charge, again here, by the symmetry of the line charge, there are equal and opposite elements. Same element, मान लो इसका above the point O है, तो same ही point हम below the point O consider करेंगे. तो means that जैसे suppose करो कि आपके पास small element इसका opposite हम element consider कर लेते हैं यहाँ पे. तो इसके लिए हम ज्वाइन करते हैं उसको लाइन को. इसका अपोजिट जो पोर्शन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी इसमें. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, द अपोजिट लेंथ ऑफ दिस ए बी, इसकी जो अपोजिट लेंथ है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ. तो हमारे पास डीई आ गया. मैग्नीट्यूड सेम अगेन सेम रहेगा यहाँ पे. मैग्नीट्यूड, ये डीई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एंड मैग्नीट्यूड इज सेम बिकॉज द सेम लेंथ के ऊपर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. सेम इसके ऊपर चार्ज है और सेम यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है. अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. एक्सियल कंपोनेंट इसका आ जाएगा आपके पास डी कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा डी साइन थीटा. व्हाट डज इट मीन्स दैट कि दोनों की ये जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है and they cancel out each other. Therefore, the effective component of the electric field at point P is given by dE cos theta. Again, जो effective जो component है वो कौन सा रहेगा? That is equal to dE cos theta because their normal component are equal and opposite and hence they cancel out each other. The effective component, the resultant, या इसको कह सकते हैं आप the resultant electric field, the resultant electric field at point P due to small element is given by, क्योंकि इस एक्सेल कंपोनेंट में कंसिडर कर रहे हैं उसको, तो क्या ले लीजिए आप इसको डीई एक्स इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा. सेम. अब हम इसका स्मॉल एलिमेंट से नहीं चाहिए बट हम इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज. देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to a line charge by integrating the dE, we get E is equal to the integration of dEx and is equal to integration of 1/4 pi epsilon naught. या इसको ऐसे कंसिडर कर लो, इसको डीई कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू, बट यहां पे उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसके लिमिट्स रख लेंगे इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. पुट द वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर दो इसमें. तो हमारे पास डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा. बट यहां पे हम क्या करते हैं, इसको एक ही पोर्शन लेते हैं इसका. ओके, हम इसका एक पोर्शन कंसिडर करते हैं इसका. चाहे नीचे वाला पोर्शन ले लो इसको, चाहे आप इसका ऊपर वाला पोर्शन कंसिडर कर लो. बट अबव द लाइन पॉइंट ओ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसका लिमिट कितना मिल जाएगा इसका 0 टू प्लस इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा.
बट यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इसमें, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, बट सी हियर इन ट्राइंगल COP, the tangent theta is equal to, what is tangent theta? N upon x, and implies that L is equal to x tangent theta. ओके, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे dl को चेंज करूंगा, यहाँ पे इसकी लेंथ को नो डिफरेंशिएट करो, इसको differentiate this term, then we get BL is equal to, differentiate both sides, we get DL is equal to, what is the differentiation of tangent theta? The differentiation of tangent theta is secant square theta into d theta. बट जब हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, हमारे पास वैल्यू आ रही है x, सॉरी L इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा। ओके, L इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको, इसके लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। व्हेन L इज इक्वल टू 0, L का वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लिमिट आपके पास रहेगी, एंड सेकेंड लिमिट क्या थी, प्लस इन्फिनिटी। देन L इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू π/2। अदरवाइज हम इसको वहां पे पोर्शन, हाफ पोर्शन इसका कंसिडर करते तो दोनों साइड के लिए ठीक था, π/2 टू -π/2 टू π/2। तो हमने इसकी लिमिट्स भी निकाली कि जब इसको हमने पुट किया, यहाँ पे L इज इक्वल x थीटा लेके चले, तो DL इज इक्वल x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हमने इसकी लिमिट भी चेंज कर दी। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू 0 टू π/2, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया होता, 1/4πε0। वहां पे लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, DL का वैल्यू कितना है, x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। L का वैल्यू पुट कर दो उसमें, L स्क्वायर इज x स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस x square into cos of theta, and which is equal to 0 to π/2। 2 के साथ इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इन सारी टर्म्स को बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो लैम्डा x अपॉन 2πε0, द लिमिट इज 0 टू π/2। x को बाहर ले लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, कॉमन यहां से x को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 1 प्लस या टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। यहाँ पे x को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 0 टू π/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा अगेन सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल, एंड विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0
0 to pi by 2 cos of theta d theta. Now integrate, इस टर्म को इंटीग्रेट कर लो यहाँ पे, then we get that E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught. जब इसका इंटीग्रेशन करेगा तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, और लिमिट आप इसको 0 to pi by 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, एंड विच इज इक्वल टू फॉर द लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू lambda upon 2 pi epsilon naught. The limit is upper limit pi by 2 minus lower limit is 0. सॉरी यहाँ पे एक फैक्टर x भी रहेगा इसके साथ भी, इंट्रोड्यूस कर लेंगे इसको. तो हमने कैंसिल किया था वहाँ पे x के साथ, x स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ. जो स्टेप था मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, बिकॉज x के साथ जो हमने x स्क्वायर कॉमन आया था तो एक x कैंसिल हो गया था उसमें. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको, दैट इज x, एंड विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught into x. Hence E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into x. और इसको हम x की तरफ ले रहे हैं, यदि उसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, then we have lambda is equal to E is equal to 2 pi upon lambda upon 2 pi epsilon naught x. इसकी x डायरेक्शन है तो हम इसको इन वेक्टर नोटेशन में भी कंप्लीट कर सकते हैं. तो इससे पहले वाला जो केस था हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, जो वैल्यू आ रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट लाइन चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये आर या एक्स जो भी इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास दिस द डिफरेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon x. This is the electric field due to the line charge distribution.